वज़ारे हुस्न की हम बात कर रहे थे, आपने तो इसको अपने जोबन पे अरूज बिल्कुल बिल्कुल देखा है। अब माशाल्लाह डिफेंस सबसे बड़ी हीरा मंडी पाकिस्तान में, सब वहां पहुंच गए हैं। आपको बुरा लगा जब ये हीरा मंडी को बंद कर दिया गया, सब उठा दिया? मैं ये समझता था कि यहाँ से अगर बंद हुई तो ये सारे शहर में फैलेगी। पहले होता था कोई डाका पड़ता था ना शहर में, शाम को डाकू यहाँ पकड़ा जाता था। क्या इमरान खान साहब मर्दम शनास हैं, बंदा पहचान लेते हैं? नहीं, शहर की कमर्शलाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये ख़त्म हो जानी चाहिए। अंदरून शहर से सारी मार्केटें बाहर निकलनी चाहिए। कश्मीरी गेट के गेट की फसील के बिल्कुल साथ एक 9 मंजिला प्लाजा है, गेट के ऊपर, वो गेट को ओवरशैडो करता है। और ये पिछले और मेरे भाई जो जब ऊपर से हुक्म आते हैं कि ये करना है तो फिर कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता। लोग कहते हैं तुसी करियर बनाते हो, मैं विश हयात दा करियर तुसी लॉन्च किया। प्ले बॉय कहना, पार्टी बॉय कहना, आजकल जो मर्जी ਉਹਨੂੰ कह रहे हो तुसी। पसंदीदा इंसान कौन है ਤੁਹਾਡਾ? बहुत सारी खवातीन ने ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਵੀ? ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਰਚੂਨਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀਏ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਸਾਨੂੰ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ? ਨਾਨ ਚਨੇ ਜਾਂ ਅੰਡੇ ਪਾ ਲਾ। ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਨੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ, ਐਸਾ ਹੈ? ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। तो सियासत का एक्सपीरियंस कैसा रहा बतौर एक MP है? ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ मैं दिल की बातें करूंगा, मेरे ख्याल से जब आप उनका चेहरा देखेंगे तो अपना तारुफ आप हैं। लाहौर शहर की पहचान है, लाहौर शहर की शान है। वो कहते थे ना, ये पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की जान है। तो ये हमारे मुल्क की शान है, जान है, और हमारे शहर की जो है ना विरसा, उसको संभाले बैठे हैं। और हम उनकी तरफ बड़ा इस तरह उम्मीद की नज़रों से देखते हैं कि मुल्क की सकाफत को, शहर की सकाफत को बचाए में। मेरी मुराद मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल शुक्र है भट्ट साहब, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। मैं ठीक हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ठीक तबीयत ही ठीक लग है। और मैं कहा दो लाहौरीए बैठे थे, हल्का ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋ ਲਾਹੌਰੀਏ ਤੇ ਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਹੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਲਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਰੋਟ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਕੋਈ ਕਾਜੂ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਖ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਠਾਸ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮਿਠਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ, ਆਈ ਲੁੱਕ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੋ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 350 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਰੂਦ ਖਾਨਾ ਹਵੇਲੀ, ਹਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ में बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है, रेस्टोरेशन ही मेरा बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन एज पार माई लाइफ गोज मैं कभी पिछे मुड़ के नहीं देखा। जो हो गया सो हो गया, अच्छा ही होया जो भी होया। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਰਟੀ ਬॉय ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਲੇ ਬॉय ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ, ਐਵੇਂ ਲੀਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਪਲੇ ਬॉय ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬॉय। ਪਲੇ ਬॉय ਕਹਿਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਬॉय ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਬॉय ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬॉयਸ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੜੇ ਪਲੇ ਬॉय ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀ, ਓਪਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਂਚ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਔਰ ਮਾਇਰਾ ਦੀ
ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਲੋਫਰ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਐਲਬਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਟਰਸਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਨੈਵਰ ਬੋਦਰਡ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਹਯਾਤ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਯਾਤ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਵਿਸ਼ ਨੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਰਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੋਨੀਆ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਮਿਲ। ਕੋਈ ਐਕਟਰੈਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਐਕਟਰੈਸ? ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹਲਕੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਬਣਾਈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਐਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ। ਪਸੰਦੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਨਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਾਤੂਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ। ਫਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ। ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ। ਚਲੋ ਦੋ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਜ਼, ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚੀਕ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਪਸੰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਨਾਪਸੰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ them। ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰੀਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਪੱਕੇ। ਜੰਮਪਲ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਲੜਾਈਆਂ ਬੜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਚਪਨ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਪਟਾਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੁੱਟ ਖਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ? ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵੀ 2 ਸਾਲ। ਕੈਸਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ, ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਐਚਐਸਐਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵੇਦ ਅਨਾਇਤ ਭੱਟ, ਚਾਚਾ ਅਨਾਇਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਭੋਲਾ, ਆਪਣਾ ਗੁਮਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਕਨੇਮ ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਿਕਨੇਮ ਯਾਦ ਨੇ। ਪਰਵੇਜ਼, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੈਂਗ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਭੋਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਭੋਲਾ, ਉਹ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਲਸੋ ਡਾਈਡ ਯੰਗ ਆਫ ਕੈਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਸਨ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਮਲਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ, ਮਲਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਐਚਐਸਐਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਜਨਮਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਦਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ
ਲੜਾਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵਕਤ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੋਕ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ .22 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਕੈਂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੱਢ। ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਪਾਗਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹਾਕੀਆਂ ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੈਟ ਜਾਂ ਹਾਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਸਾਨੂੰ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਖਾਣਾ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਛਾ ਪਾਏ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦਾਸ ਕੁਲਚੇ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਕੁਲਚਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਪਾਏ। ਫਰੰਟੀਅਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਪਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਮਨ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਾਏ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ, ਬਾਕੀ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਦਿੱਲੀੋਂ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਾਸ ਕੁਲਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਖ ਚਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ? ਨਾਨ ਚਨੇ ਜਾਂ ਅੰਡੇ ਪਾ ਲਾ ਜਾਂ ਮਟਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚਨੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿੱਠੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹਦੇ ਮੱਛਲੀਆਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਛਲੀ ਦੀ ਬੋਟੀ, ਕੋਫਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਅੰਡੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਸੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਾਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕੋਸੀਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਹੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਮੰਗਲ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਵੀਟਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਤੀਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਮਸਲਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਲਕ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵਾਲਾ ਪਾਲਕ ਗੋਸ਼ਤ? ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਓਗੇ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਬਾਬਾ ਦੇ ਹੋਟਲ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਲਕ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ, ਓਜੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਓਜੜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਪਕਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਛੇ ਕੁੱਕ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣ ਜਾ ਕੇ? ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਪੈਪਰ ਵਿਲੇਜ, ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਪੈਪਰ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਵਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨਿਊ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੇਸਟ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਸਟ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀ ਡਾਇਨਾ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾਇਮਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਪੈਪਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਲੇਡੀ ਡਾਇਨਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਇਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ, ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤਵਾ ਚਿਕਨ ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਟਕ ਬੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕੜਾਈ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਰਿਫ ਹੋਟਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਰਿਫ ਚਟਖਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੱਜੇ ਪਾਏ 9 ਗਜ਼ੇ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਦੀ ਕੜਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਮਟਨ ਦੀ ਕੜਾਈ, ਔਰ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਆਰਿਫ ਚਟਖਾਰਾ ਦਾ ਤਵਾ ਚਿਕਨ ਬੜਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਪਾ ਗੁਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸੀ ਨਾ ਤਵਾ ਚਿਕਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਫੌਜ ਸ਼ਾਹਦੌਲਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਇੱਥੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਰਿਫ ਚਟਖਾਰਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ਾਹਦੌਲਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਸੀ। ਉਫ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਾਲਾ, ਬਸ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਚਟਨੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਖਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਦਰੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਤਰਨਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਦੂਰ ਸੀ। ਤਰਨਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਦੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਮਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਸਭ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਵਰੇਟ ਫੂਡ ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਆਈ ਲਵ ਇਟਾਲੀਅਨ ਫੂਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਕੋਸਾ ਨੋਸਟਰਾ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਸਾ ਨੋਸਟਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੌਲਾ, ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹਾਈਡ ਆਊਟ ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਰਗਰ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕਲੱਬ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਧਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਫੇਵਰੇਟ ਫੂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੈ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ? ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਖਨੀ ਪੁਲਾਓ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਗੀ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਰਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਗੀ ਪੁਲਾਓ ਜਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਰਿਆਨੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ? ਦਿੱਲੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਨਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੱਛਰ ਨਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੱਛਰ ਨਾਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ HSN ਦੇ, ਆਪਣਾ ਜਵੇਦ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਸਾਰੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਹੀ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਨਾਰਕਲੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟੀ ਕਬਾਬਾਂ ਦਾ, ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਨਾਰਕਲੀ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰਿਸ ਨਿਹਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਬਿਰਿਆਨੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਾਸ ਕੋਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇਤਨੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਸ਼ਤਾਬੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਰਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੀਰਮਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਤਾਫਤਾਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਮਿੱਠਾ, ਜ਼ਰਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਫਤਾਨ ਖਾਓ, ਜਾਂ ਤਾਫਤਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੀਰਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਰਮਾਲ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ੀਰਮਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਰਮਾਲ। ਔਰ ਲਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਲਾਲ ਰੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ, ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂ ਲਾਈਕ ਸਮਬਡੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਇਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਬਾਊਟ ਮੇਰਾ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, 14-15 ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਸੀ? ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਟ।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ? ਹਾਂ, ਬੜੀ। ਤੇ ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਦੀ ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਸਤੀ ਲੋਕ। SMS ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? SMS ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੋਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਿਕ 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 ਟਿਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੌਇਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ਕ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ਼ਕ ਭਾਈ ਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ? ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ 3 ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ 3 ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ 3 ਹੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ। ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਯੂਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਜਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮਾਯੂਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ 100 ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਰਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਕਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਮਾਯੂਬ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ 2 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ? ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੁਕ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਸਭ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਸਾਡੇ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਰਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਨੈਵਰ ਟੈਲ ਦ ਟਰੂਥ। ਔਰ ਫੌਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਬੂ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਮੂਮਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਘਰ ਗਈ, ਨਾ ਉਹ ਆਏ, ਨਾ ਕਦੀ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੋਖੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਓਨੈਸਟ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਆ ਗਈ, ਦੋਨੋਂ ਟਰੂਥ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, what's wrong with it? ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫੇਅਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕਰਪਟ, ਮਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਇਟਸ ਫੈਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਦ ਨੇ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਉਂਝ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਰਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਾਂ, ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਰਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਦਿਸ। ਇਕੁਅਲ, ਹਾਂ ਇਕੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਮੋਰ ਫॉर ਅ ਵੂਮਨ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਹਰ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਮੰਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ੂਕ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੁੱਲਾ ਕੰਮ,
ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਲੋਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਿਊ ਲੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ? ਵਾਈ ਸ਼ੁਡਨਟ ਦੇ ਬੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਇਫ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਵਰਕ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਪਣਾ, ਮਰਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਯੂ ਕਾਂਟ ਜਸਟ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਦ ਉਹਦੇ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੈਂ ਨੈਵਰ ਥੌਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਆਈ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ਡ ਨਾਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੈਂਕ ਗॉड ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਟਰਸਟਿੰਗ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦੈਮ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟਰ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਕ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਸੈਂਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੇ ਸੈਂਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਹਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਾਕ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਚਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬੈਡ ਸੈਂਸਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਮੀਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ ਮੀਸਣਾ ਦੇ ਚਲਾਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀਏ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰੀਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਔਰ ਬੜਾ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ? ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਾ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ? ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਫਰਕ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੜਾ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬੈਡ ਲਾਹੌਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਗਏ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀਏ ਨੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ, ਐਸਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਮਲਾ ਉੱਚਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਨੀ ਹੇਟਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੈ? ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਛ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ तो समझो कि ਤੁਹਾਡੇ हालात ਜਿਹੜੇ ਨੇ कभी बेहतर नहीं हो सकते, कभी भी बेहतर नहीं हो। अच्छा, तो सियासत का एक्सपीरियंस कैसा रहा बतौर एक एमपी है? मुझे कोई, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई इतना कोई उसमें इंटरेस्टेड था, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि भी क्या ये सियासत हो रही, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। लाहौर शहर की एक अथॉरिटी बनी है, वॉल सिटी अथॉरिटी, आप उसके साथ काम भी कर रहे हैं, क्या कैसा रोल आपका नज़र आता है? उसको कामरान लशारी साहब अब तो जा चुके हुए हैं, रिज़ाइन कर चुके हुए हैं, उसके बाद भी अब वो नजम साकिब साहब आ गए हैं, डीजी नए आ गए हैं, ये काम कैसा कर रही है, इस शहर को संभाल पाई है? क्योंकि मैंने शहर में लाशारी का मुकाबला नहीं हो सकता, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये वक्त था, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस वक्त इस चीज़ में। कामरान लशारी साहब के दौर में एक प्लाजा माफिया बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे नहीं पता कि प्लाजा माफिया आया। अब कामरान लशारी हर चीज़ तो होल्ड नहीं कर सकता था ना। कामरान लशारी को पावर तो उसके पास थी कोई नहीं, ना पुलिस की पावर थी ना किसी और चीज़ की पावर थी। वो तो इधर उधर से जो अफसर, वो तो उसका तो इतना ही काम था कि जो उसने जितना काम वो कर गया है, आई थिंक। जो आप लाहौर का किला देख लें, आप जाके अभी जहांगीर का मकबरा देख लें, रॉयल पाथवे देख लें, अब रॉयल पाथवे देख लें, गलियां जितनी गलियां देख लें, सारा आप शालामार बाग जाके देख लें, आप बरकत हॉल को देख लें, आप ब्रैडले हॉल को देख लें, आप सारा शहर फिर के देख लें, जहाँ जहाँ भी काम हुआ है बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, और ये लगन के साथ काम होता है। इसके लिए एक पैशन की ज़रूरत है, ठीक है। और शहर की कमर्शलाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं आप? शहर की कमर्शल, मैं तो समझता हूँ कि ये ख़त्म हो जानी चाहिए। अंदरून शहर से सारी मार्केटें बाहर निकलनी चाहिए अगर आपने वाकई इसको शहर को ठीक करना है। और आपकी ये जो ट्रकों का अड्डा है, ये यहाँ से शहर से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। ये रेम की मार्केट ख़त्म होनी चाहिए। इस पर तो है प्लान के भी, अब पता नहीं हो सकेगा, आधी जा रही है, चाह रही है, इस तरह कर रहे हैं। इसी तरह अब ये अनफॉर्चुनेटली व्हेन मुझे इस बात का इल्म है कि जब कामरान लशारी का ये सारा सिलसिला हुआ, और मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या कह सकता हूँ कि जो कोर्ट ने जो फैसला किया, मतलब इस तरह के फैसले तो नहीं आते कि एक बंदे को कि भी आप रिज़ाइन करो, और बहरहाल हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये मामला तो और किस्म ऑनरेबल कोर्ट का फैसला था, ऑनरेबल कोर्ट ने बात की थी, तो वो उन्होंने इस पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था। नहीं, उन्होंने कहा था कि आप इस्तीफ़ा जो है वो दे दें, और इस तरह की, मुझे नहीं पूरा इल्म नहीं है, लेकिन सुनने में यही आया कि कोर्ट ने कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। अब चलो इस्तीफ़ा, उसके बाद मुझे इस बात का इल्म है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को बहुत फील किया, और उन्होंने ये फिर ये
उन्होंने कहा भी कि नजम साकिब को, क्योंकि उसने राइट हैंड मैन थे, साथ काम किया था इतने सालों से, उसी को लगाया जाए, लेकिन उसके दौरान बीच में किसी और को लगा दिया जाए, ठीक है। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। मसलन मैं आपको ये बताऊं कि ये वज़ीर खान की मस्जिद है, ठीक है, मस्जिद तो है, उसके सामने जो हाथा है वो वॉल सिटी अथॉरिटी का है, और उन्होंने ये डील ग़ालिबन उनके साथ ये की, और जो वहाँ के जो मौलवी हजरात थे जो भी उनके साथ, कि जी यहाँ कुछ और नहीं हो सकेगा, ठीक है। अब ये तो बात गलत है। अब चाहे हजूरी बाग है, हजूरी बाग में हर किस्म के प्रोग्राम होते हैं, तो हिस्टोरिकल प्लेस। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जब मैं छोटा था मैंने यहाँ पर सब कुछ, मेले, शादियाँ, हर सब कुछ होते देखा है। तो ये वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है, वो कम्युनिटी सेंटर है। वो कम्युनिटी सेंटर है, वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है। और इसके ऊपर मुझे शदीद मेरा मतलब है कि ये मुझे इस बात का ये दुख है कि ये नहीं होना चाहिए था। वहाँ एग्जिबिशंस होती हैं, वहाँ अभी फूलों की नुमाइश हुई थी, वहाँ सारा शहर वहाँ इकट्ठा हुआ था, वहाँ कवालियाँ होती हैं, वहाँ क्या कहते हैं जो आते हैं फ़कीर, उनके ढोल बजते हैं। क्यों भाई, दाता साहब बजते हैं हर जगह, आप क्या कहते हैं ये सिलसिले होते हैं। तो ये तो नहीं करना चाहिए ना इस तरह। तो दिस इज ट्रेडिंग ऑन द पाथ, जब जो उनकी मतलब उनकी मस्जिद का जो हिस्सा ही नहीं, मस्जिद के हिस्से की दुकानें हैं, हम रहने वाले वहाँ के, हमने कम्युनिटी सेंटर देखा, मैंने बहुत सारी शादियाँ तो ये इस तरह की दो चार चीज़ें हुई हैं कि जो नहीं होनी चाहिए थी। तो आई होप कि अभी नजम साहब आ गए हैं वहाँ, और लाशारी साहब जो हैं वो भी अभी भी आई थिंक ही इज़ वेरी मच इन्वॉल्व। इनकी सारी मीटिंग्स जो वॉल सिटी की तो नहीं, लेकिन अपना CM की और मियाँ साहब की जो मीटिंग्स होती हैं ऑन ग्रेटर लाहौर की डेवलपमेंट में, ही इज़ इन्वॉल्व इन दैट विदाउट होल्डिंग एनी पोजीशन। अच्छा सर, ये जो सा अभी लहर का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके मुताबिक जो सर्कुलर गार्डन है उसको ठीक किया जाना है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल मैं इत्तेफाक बिल्कुल टोटली मैं इत्तेफाक करता हूँ। सर्कुलर गार्डन को रिहेबिलिटेट करना चाहिए, और फसील जो है उसको, फसील का कुछ हिस्सा तो बहुत साल पहले वर्ल्ड बैंक में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, कश्मीरी गेट और शेरावाला गेट के दरमियान बना था। अगर वो यहाँ से बन जाए, क्या कहते हैं, भाटी गेट से लेके तो जो ये रोशनाई है नहीं, टकसाली दरवाज़ा जो है, ये इतना बन जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। जो बाहर से लोग आएंगे वो देखेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। अभी आपका जो लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल है वो बन गया है, और ये भी इसको गिरा देंगे और सारा आपका जो व्यू जो है, क्या कहते हैं, बादशाही मस्जिद का, वो भी क्लियर हो जाएगा उसमें। तो वो भी एक बड़ा अच्छा उसका एक एस्पेक्ट होगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और अगर कोई ये काम हो रहा है और तो इसको मेरा ख्याल है सराहना चाहिए, क्योंकि ये मैंने देखा है, मैं तो शुरू से जब से वॉल सिटी अथॉरिटी जब से बनी है तो मैं इसके साथ मुंसलिक हूँ, बोर्ड का भी मेंबर हूँ। जो हेरिटेज बोर्ड है उसका मैं चेयरमैन अपना वॉल सिटी अथॉरिटी का। तो इसके ये बड़ी अच्छी बात है कि जिसका भी दौरे हुकूमत आया है, ठीक है, उन्होंने इसको सपोर्ट ही किया हमेशा। मियाँ शहबाज शरीफ और चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी फुली सपोर्ट किया, इमरान ने भी फुली सपोर्ट किया। अब आई थिंक मरीम नवाज की जो गवर्नमेंट है वो भी फुली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ का बेनिफिट हमेशा उस गवर्नमेंट को मिलता है जो इसको सपोर्ट करेगी, सीधी बात है। लेकिन लोग जो से हैं वो रिटेलिएट कर रहे हैं कि हमारी कौन रिटेलिएट कर रहे हैं? जैसे मार्केट के जितनी बाहर मार्केटें हैं, मदीना मार्केट है, एनक मार्केट वाले तो मान गए, मदीना मार्केट वाले नहीं मान रहे कि हमें जो कंपनसेट कर रहे हैं पता नहीं कंपनसेट सबको करेंगे, कोई काम नहीं है। ये सारी मार्केट सारी इलीगल बनी हुई है, सर जगह ये जो ज़मीनें गवर्नमेंट की थी सारी आपकी रिम की मार्केट जो है ये गलत, बिल्कुल सारी टोटल करप्शन है ये। और इन सब को खास हमारा हाल देखें हैं क्या, चारों तरफ जूतियों की मार्केट बन गई। हाँ जी, आपके उसके इससे तो बेहतर वो जब जो बाजार जब था, हाँ, वही बेहतर थी। कम से कम कोई खुशबुएं तो आती नहीं, अब तो गंदी बुएं आती हैं केमिकल्स की और लेदर की। तो ये जो है कल्चर जो हमने खुद ही ख़राब किया है अंदरून शहर का। आप देखें कि हर जगह आप जो होलसेल मार्केटें, और कोई हमने नहीं छोड़ा, कोई ट्यूबवेल नहीं छोड़ा इन्होंने, कोई जितने भी अपने आप को
दावे करते हैं कि जी हम फलाने इलाके के हम चेयरमैन हैं, फलानी क्या कहते हैं सर अंदर तो ज़मीन ही बड़ी महंगी है शहर में, छोटी छोटी दुकान आज़म मार्केट के अंदर करोड़ों रुपए की मिलती है, तो ये तो बड़ी मुश्किल होगा इन सारों को कंट्रोल करना, इन सारों को किसी ना किसी तरह शहर से बाहर लेके जाना। और एशिया की सबसे बड़ी नहीं, क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते? सारी दुनिया को कंट्रोल तो कर सकते हैं, क्यों ये नहीं कर सकते हैं। डंडा हाथ में पकड़ें तो वैसे जो लोगों की ठुकाई पिटाई हो जाती है इनकी भी जरा करें। ताजर जो उनसे बड़े परेशान हो जाएंगे। चलें अगली बात पे आते हैं, सेकंड लास्ट बात है। ताजर जो है उन्होंने आज तक ना कभी टैक्स दिया, ठीक है, नहीं देते हैं टैक्स, कोई टैक्स नहीं, जितना उनका बनता है उसके हिसाब से टैक्स नहीं देते। सब के सब जो है आई मीन दे हैव अर्न सो मच, इसी मुल्क से उन्होंने किया है। आप देखें यहाँ शहर के अंदर जगह जगह ये जहाँ घोड़े के पानी पीने की जगह थी, कहाँ नहीं नजर आती कोई आज तक? नहीं नजर आएगी आपको। होती थी गूं गड्ढे थे जहाँ के सारा फिल्थ जो था वो वहाँ इकट्ठा होता था, वो भी कोई नहीं रहा। हर जगह प्लाजे बन गए। किसने बनाए? गूं गड्ढों पे प्लाजे बन गए, होदियों पे प्लाजे बन गए, वहां पर वो कोल्लू होता था, गंदे नालों पे प्लाजे जो अब शहर की तो इस तरह तबाही होगी ना। हर जगह आपने मार्केटें बना दी, हर जगह। हाँ ठीक है, अब मेरा कोई घर है, मैं नीचे 2 दुकानें बना दूं, फाइन, दैट डजंट मैटर। लेकिन ये नहीं कि पूरी पूरी होलसेल मार्केट्स जो हैं वो क्या कहते हैं यहाँ उसके अंदर आ जाए। तो मेरे साहब इसमें वो वॉल सिटी अथॉरिटी जब बनी थी तब से किरदार तो रहा है। तो किरदार वॉल सिटी तो चीखें मार मार के कमाए हैं ना लोगों ने, नहीं अंदर लोगों ने पैसे कमाए हैं ना। किसने? ये जो वॉल सिटी अथॉरिटी के अंदर थे, प्लाजा बनाने में जब वो जो लोग नीचे जाते थे, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर जाते थे, इंस्पेक्टर वॉल सिटी के थोड़ी थे, वो तो नहीं, वॉल सिटी इजाजत देती है ना प्लाजा बनाने की। वॉल सिटी इजाजत देती है, लेकिन ये वही लोग थे कि जो कोई कॉर्पोरेशन से, कोई एलडीए से, कोई वहाँ जो आके लोग बैठे हुए। अब तो मियां साहब ऐसी जगह हैं जो औकाफ की जगहों में प्लाजे बन गए, मंदिरों के ऊपर प्लाजे बन गए। आज से नहीं, वॉल सिटी तो बाद में आई, उससे पहले ही सारा काम हो गया। लेकिन वॉल सिटी का किरदार थोड़ा सा मशकूक रहा है इसके अंदर। नहीं, आई एम सॉरी टू से, आप वॉल सिटी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। वॉल सिटी को आप ये कहना कि वॉल सिटी ने मिल मिला के प्लाजे बनवा दिए हैं, तो कैसे बने? चले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए आप एक मिनट है। अब बात ये है कि जब अथॉरिटी फुल होगी ना, जो डीजी होगा, अगर उसके पास होगी अथॉरिटी फुल, उसके बाद ये काम हो तो ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने वो कश्मीरी गेट देखा? कश्मीरी गेट जो अंदर चढ़ते ही स्कूल है, कश्मीरी गेट के गेट की फसील के बिल्कुल साथ एक 9 मंजिला प्लाजा है। गेट के ऊपर वो गेट को ओवरशैडो करता है, और ये पिछले मेरे भाई जो जब ऊपर से हुक्म आते हैं कि ये करना है तो फिर कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता। हाँ, ये भी आप बात तो करें ना, यहाँ सारे को क्या कहते हैं, कोई बात कर दी है नहीं, ऊपर से हुक्म आ गया, जो ऊपर से हुक्म आ गया उसका फिर वॉल सिटी क्या करे? वॉल सिटी के पास क्या है? वॉल सिटी के पास कोई ताकत तो नहीं है ना। आदमी को तो रोक देती है, घर पे भी ताला लगा देती है, माड़ा बंदा अगर कोई बना रहा हो ना नीचे कंस्ट्रक्शन कर रोक देती है। बिल्कुल, वो तो हमारा एक डेली एक काम है जो हम करते ही हैं। छोटे बंदे को रोक देती है। मेरे पास कई लोग कंप्लेन करते हैं कि जी जब आके तंग किया, पैसे मांग लिए, होता। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होता, लेकिन वो उसके लिए फिर एक अथॉरिटी तो आपने बना दी, ठीक, लेकिन उसको वो पावर नहीं दी। मतलब आपके नीचे उस वॉल सिटी के जो डीजी हो, वॉल सिटी की सारी पुलिस उसके नीचे होनी चाहिए, ठीक है, सारी कॉर्पोरेशन उसके नीचे होनी चाहिए। लेकिन पुलिस की हेल्प तो ले लेते हैं तमाम नहीं बाबा, नहीं, वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम इससे आगे चलते हैं। बाज़ार हुसन की हम बात कर रहे थे, आपने तो इसको अपने जोबन पे अरूज बिल्कुल देखा है। ये कैसा था? बहुत खूबसूरत। मैंने तो इसको एंड पे देखा हुआ, जब गाड़ी पे फतियां फेंका करते थे, लेकिन बाद में मोची घुस गए हुए थे बीच पे। ये कैसा था बाज़ार हुसन? इसका अपना एक बिल्कुल था। और इसका अरूज कैसा था? जरा थोड़ा सा मंजर तो बताएं, मेरी जनरेशन या नई जनरेशन। मेरी भी जनरेशन जो है, हमने भी इसको बहुत, हालांकि यहीं पले बड़े, इसका कोई हमें इल्म नहीं था, पता ही नहीं था। ये जाके पहली दफ़ा मुझे जो क्या कहते हैं यहाँ जाने का मौका मिला, तो उस वक्त ये मेरा ख्याल है कि 1970s की बात होगी। ओह, और ये टॉप अपनी पीक पे था। हाँ, तब ये पीक पे था। सबसे पहले की पैदाइश जो थी वो 51 की थी। हाँ। तो 71-72 में मेरी उम्र को 20-21 साल थी। ठीक है। तो मुझे उससे पहले हमें नहीं कोई, और बाज़ार जो था ये जहाँ हमारा सिनेमा है यहाँ तक था भी नहीं।
पीछे ही था, तरन्नुम सैन में तक था और एक दो गलियां पीछे थी। फिर ये मेरे ख्याल ओवर द ईयर्स ये आहिस्ता 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 जो ये आगे आगे भी आ गया। अच्छा। और रिहाइशें प्रॉब्ली इनकी थी यहाँ। अब इसको ओरिजिनली देखा जाए तो प्री पार्टीशन भी देखा जाए तो आप देखें जितने मकान हैं हीरा मंडी के अंदर वो किसी सेठ के मकान थे, कि हिंदुओं के भगवान दास और फलाना और ये पीरजादों की ये बेली और ये सब हमारी अपनी जो बरूद खाना बाजार बरूद खाना तो सेपरेट था। तो ये बिल्कुल अपना मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस बताएं हीरा मंडी का, कैसा था एक्सपीरियंस जो था? अब आई थिंक प्रॉपर गुजर के मैं तो पहली दफा वही मुझे बताया ना, क्या गुजर के देखा, मतलब एक अजीब मंजर था कि नीचे भी ऊपर भी 3-3 फ्लोर्स पे वो जो तवाइफें थी वो बैठी होती थी, ठीक है। और हम उस वक्त ये करते थे कि जो भाई ज़्यादातर उसमें कि भी गुजर के बीच में से यही हमारा लगे भी गुजर के देखे और चले गए, ये भी। हालांकि फिर पहली दफ़ा मुझे याद है कि कुछ फ्रेंड्स जो थे वो आए, हाँ आई थिंक मिक जैगर आया था जो पॉप स्टार नहीं है बहुत बड़ा, वो और उसकी बेटी। तो उन्होंने बड़ी ख्वाहिश जाहिर की कि हमने ये देखना, तो फिर उनके साथ में गया मैं, उनको आई वेंट विद देम और बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छी, क्योंकि ये सारे आर्टिस्ट, बिल्कुल सुना। और आर्टिस्ट जो थे देखें, ये आप बात आप बोल रहे हैं कि हमारी पंजाब की रवायत थी कि मुजरे जो थे वो शादियों पे होते थे जी, होते और ये बात मुझे याद है कि चौधरी अल्ताफ साहब गवर्नर थे, उन्होंने ये बयान दिया था अखबार में कि मुझे बड़ा दुख है कि मैं अपने बेटे की शादी पे मुजरा नहीं करवा सकता, ये तो हमारी पंजाब की रवायत है, ठीक है। तो शादियों पे इधर उधर तो बिल्कुल ज़रूर देखे, लेकिन ये आज भी जो पुराने लोग हैं उनकी शादियों पे होते हैं ये आर्टिस्ट थे और ये बिल्कुल इनकी कोई बेहूदगी नहीं थी इनके अंदर, ना इनके लिबास में कोई बेहूदगी थी, ना इनके बाकायदा इनके टीचर्स थे जो उनको सिखाते थे, डांस सिखाते थे। अब जो हो रहा है, जो काला बाग हमेशा कहता था कि इसको बंद ना करना कभी क्योंकि ये सारे शहर में फैल जाएगा, अब माशाल्लाह डिफेंस सबसे बड़ी हीरा मंडी पाकिस्तान में, सब वहाँ पहुँच गए हैं। वो हर आपको पता ही नहीं है कि साथ वाले मकान में कौन है या क्या रह रहा है या क्या हो रहा है, और जिस किस्म का बेहुदा लिबास मतलब लिबास पहनती हैं और जाके वो फिर परफॉर्म करती हैं। तो ये मेरा मतलब है कि कभी भी जो एक नेचुरल चीज़ है उसको मैं समझता हूँ कि देख उसको छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और वो एक अदाब भी उनके अंदर था, वो उनको तहजीब भी थोड़ी बहुत थी, अब वो नहीं रही। अब तो बिल्कुल वो ये सुनने में आता है या बंदा देखता है, ये आप तो सोशल मीडिया पर हर चीज़ आ जाती है, ठीक है। वो आप देखते हैं कि वो लड़कियों ने ऑलमोस्ट लिबास बिल्कुल ही नहीं पहना होता इंग्लिश और लोग और वो इंडियन गानों पे डेकों के ऊपर वो डांस वो कर रही होती है, वो डांस भी नहीं होता। और ये भी नहीं कि उनको बड़ा अच्छा कोई याद हो ना, कि जिस तरह अब कथक जो डांस था जो ये लड़कियां करती थी, तो ये तो बेसिकली तो ये मुसलमानों की इजाज़त है। कोई मशहूर यहाँ की खातून थी जिसका नाम बड़ा मशहूर हो? नहीं देखें, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि वो हमारी बड़ी बड़ी अब क्या कहते हैं अदाकाराएं जो है पाकिस्तान की, सबका ताल्लुक यहाँ से। बताए ना सब जिस सुनने में आता है कौन कौन थी? सब आप जितने बड़े नाम है ना आप देखें, पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में भी शमशाद बेगम थी। संजय लीला भंसाली ने जो हीरा मंडी बनाई थी, वो हीरा मंडी और ये जो हमारे अकब में हीरा मंडी है, इसमें क्या फ़र्क है? वो जो उसने बनाई है वो हीरा मंडी ना पाकिस्तान में कभी एग्जिस्ट की है तो ना ही हिंदुस्तान में कभी एग्जिस्ट की है, यू नो। ये एक वाइफें जो सी थी वो फ्रीडम फाइटर वो बिल्कुल झूठ, कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है वैसा कि कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है यहाँ क्या कहते हैं हीरा मंडी में कि उन्होंने कोई फ्रीडम फाइटर बनी या उन्होंने कुछ किया, बिल्कुल ऐसी कोई कहानी नहीं है। और उसने ख़ास तौर पे देखो, उनसे जब ये उनका राइटर यहाँ आया था तो उससे कहा गया था कि आपने जो स्टोरी लिखी है ये गलत है, तो कहता था हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो सिर्फ हीरा मंडी का नाम इस्तेमाल करना है, बाकी उन्होंने अपनी फैंटेसी बना दी सारी, फैंटेसी सारी बना दी। और लोग हमारे वैसे ही जाहिल हैं, इनको जो मर्जी दिखा दो, जो मर्जी हिस्ट्री दिखा दो, ये वाह 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 जी बंसी लाल ने बना दी है जी, बड़ा कमाल कर दिया। मुझे तो उसकी देवदास भी मैं हाफ वे उठ के आ गया था, मुझे इतनी वो डिस्गस्टिंग लगी थी और इतना उसमें मेरा मतलब है कि जो दिलीप कुमार की देवदास थी उसमें कोई एक्टिंग थी, उसमें कुछ था, ये तो सारा एक एक टोटली एक और चीज़ थी। तो ये तो बिल्कुल ही कहानी जो थी बिल्कुल, इसमें कोई 1% भी सच्चाई नहीं। अच्छा मेरे साहब, हीरा मंडी ब्रोथल हाउस में कैसे कन्वर्ट हुई?
देखो, ये एक बड़ी तुमने एक सवाल जो किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अंग्रेज़ों ने इसको, अंग्रेज़ जब आए यहाँ तो उन्होंने सबसे पहले ब्रोथल हाउस जो था ना यहाँ बनाया अपने फौजियों को के लिए। उन्होंने हमारा जितना कल्चर था ना उसको बदनाम करके और उसको ख़राब करके हमें पेश किया कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो मुल्ला थे वो तो वैसे ही उनकी ग़ुलामी में चले गए, उन्होंने उनकी नौकरियां कबूल कर ली, वो जो चाहते थे वो करते थे। तो उन्होंने हालांकि ये जो जिनको हम तवाइफ़ें कहते हैं, इनका बड़ा, मैंने जैसे आपको कहा कि इनको बड़ा अदब सिखाया जाता था और इनको उठने बैठने तहज़ीब का तरीका सिखाया जाता था और अमूमन इनकी शादियां भी फिर हो जाती थी। ये जो ब्रॉथल जो थे ना, ये अंग्रेज़ों ने खोले और इनको इक्वेट किया फिर कि भी जिस तरह जो तवाइफ़ें हैं, जो नाच गाने वाली लड़कियां हैं, वो भी यही काम, मेरा मतलब है कि हालांकि इनका इस तरह का काम नहीं होता था कि जिस तरह वेस्ट में जो ब्रॉथल थे ये भी जाओ और थे, ये नहीं कि यहाँ हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में कि ऐसे को ब्रॉथल नहीं थे, कबा खाने जिसको चकला जिसको कहते हैं थे, लेकिन उनको इनसे इक्वेट करना आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादती थी। तो ये उन्होंने जिस तरह हमारे तमाम कल्चर को, हमारी ज़बान हमसे, फ़ारसी जो थी हमारी ज़बान वो हमसे छीनी, उन्होंने हमारी तहज़ीब की जो चीज़ें थी उन्होंने कहा कि ये बकवास हैं, या क्या तुम्हारे को गज़ल करते रहते हैं, कोई शायरी करते रहते हैं, ये किसी काम के नहीं है। पर आपको आहिस्ता 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 उन्होंने वो जो आपका जो तहज़ीब थी उससे आपको, आपकी यंग जनरेशन को उन्होंने मुतनफ़र किया उससे कि भी ये भी चीज़ बुरी है, ये भी चीज़ बुरी है, ये भी चीज़ बुरी है। तो ये इस तरह इन्होंने इस चीज़ को आप लेके आए। आप देखें कि उस वक़्त जब मुग़लों के ज़माने में या इवन सिखों के ज़माने में भी जितने उमरा थे, जितना जो बादशाह जहाँ रहता था वो तो किला था, किला के जो क्लोसेस्ट जो मकान थे वो हमेशा रॉयल्टी के होते थे। आप रोशनाई दरवाजे से बाहर निकलते थे तो वहाँ क्या कहते हैं, वो सारे जितने भी कोटियर्स होते थे या बड़े बड़े वज़ीर होते थे, सबके मकान उनके उधर थे। और उसमें जो तवाइफ़ें थीं, जो बहुत कुछ तवाइफ़ें जो थी, दे वर वेरी वेल रिस्पेक्टेड ऑल्सो, ठीक है। अब आप देख लें इसकी जो रंजीत सिंह की जो बीवियाँ थी उनमें से 3-4 जो थी, दे वर बेसिकली फ्रॉम दैट कम्युनिटी, वो उसी कम्युनिटी से थी। तो ये अब इनको इस तरह, मेरा मतलब है कि ये उनको रंग देना जो था, ये जो तवाइफों को फाशा बना देना, ये अंग्रेज़ों का काम था। ठीक है, कि अंग्रेज़ों ने किया, उन्होंने किया ये आके हमारी तहजीब को जो गंदा किया है और इसको जो इन्होंने। अच्छा, आपने जो उसका पीक देखा था उसमें शायद डांस वगैरह था, जो मैंने अपनी होश में ये देखी है बाजार, उसमें ये प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जा चुका हुआ था। यानी कि इसमें ऐसी सिचुएशन थी कि छोटे छोटे गंदे गंदे कमरे, छोटी छोटी चीज़ें। हाँ, मैं भी हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये भी उस वक्त तक ये लेकिन जो सर्वाइवल था वो उन्हीं का था कि जो अच्छे आर्टिस्ट थे, उन्हीं का था, ठीक है, उन्हीं का सर्वाइवल था। यहाँ से अच्छा कोई म्यूजिशियन निकला किसकी अच्छी आवाज़? क्योंकि मैंने सुना यहाँ पर मोस्टली जो गाना और वो होता, बजाना होता था, साजिंदों का बाजार आपके साथ ही है। नहीं, मास्टर गुलाम हैदर, मास्टर गुलाम हैदर जो नूरजहां के उस्ताद थे, उस्ताद थे, उनके फिर बेटे यहाँ से फौज में गए, जनरल थे वो, जनरल हैदर जो क्या कहते हैं कोर कमांडर भी रहे हैं, ठीक है। सो लोगों ने तरक्की की, म्यूजिशियन जो थे, म्यूजिशियन का अपना एक मकाम था। और आप देख लें फिर ये ताफो बरादरान और ये सब जो, मतलब ये इलाका तो एक ही है ना। नूरजहां भी यहाँ रहती रही हैं, नूरजहां भी रहती है, उनका तो बल्कि उनका जो मकान है उसके तो वहाँ प्लेक लगी हुई है, वो उतार दी है, गिर गई है, वो खत्म हो गया, उस पर गंदगी बहुत ज्यादा मैंने देखी है पेशेवर से, वो मेरे से घर भी पीछे से आधा गिरा दिया। नूरजहां के मुलाकात होती थी आपकी कभी जब यहाँ? मेरी एक दफ़ा मुझे याद है, यहाँ आई थी नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कवाली थी, तो मुझे उन्होंने, मैंने नाजिया को, जब यहाँ रहती रही हैं तब की बात कर, नहीं मुझे मैं पैदा ही नहीं हुआ, मतलब वो आपसे पहले की बात है, वो बहुत पहले की बात होगी। तो वो जब यहाँ आई तो उन्होंने अपना जिक्र किया कि मैं? नहीं, उन्होंने कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया ना, उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। वो तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कवाली थी, तो उसके लिए वो आई थी और बड़ा क्या कहते हैं उन्होंने एंजॉय किया। बड़ा अजीब एक मेरे पास आई थिंक रिकॉर्डिंग मौजूद, उस ज़माने में कैमरे नहीं होते थे, फ़ोनों में नहीं, तो फ़ोन ही नहीं होते थे, तो ज़रूर मुझे बड़ा ये दुख है कि वो चीज़ हमने
रिकॉर्ड नहीं की, बाकी उनके घर जाके कई दफ़ा उनसे मुलाकात की। अब ये क्या कहते हैं, अब आप देखें ना, यही तो बात है कि ये सिंगर्स थे सारे, ठीक है, और सिंगर्स और म्यूजिशियंस एक जगह रहते थे। अब उनको इक्वेट करना कि भी ये भी सारे जो थे ये भी मतलब कि वो काम करते थे, तो ये बात तो गलत है, इस तरह तो नहीं होता था। जो ट्रेंड जो आर्टिस्ट होता है उसकी अपनी पर्सनल लाइफ जो मर्जी हो, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये नहीं था, मेरा मतलब है कि भी कुछ जिस तरह आम प्रोस्टिट्यूशन होती भी जाओ और पैसे दो और जाके मारो। आपको बुरा लगा जब ये हीरा मंडी को बंद कर दिया गया, सब उठा दिया? अच्छा, मुझे इतनी, क्योंकि मैं ये समझता था कि यहाँ से अगर बंद हुई तो ये सारे शहर में फैलेगी और सारे शहर में एक बड़े बुरे तरीके से फैलेगी, एक बहुत बुरे तरीके से फैलेगी। ये उसका जो फिर नक्शा होगा वो बड़ा हौलनाक ही होगा और है। अब आप देख लें, आप अपना सोशल मीडिया उठा के देख लें, अब तो अब डिजिटल ब्रॉथल हाउस, वो चकले बने हुए हैं, डिजिटल डांसर्स हैं, वो अपने अपने उन्होंने पेज पे बनाए हुए हैं और वो चीजें चल रही हैं। हाँ, और हर बच्चा देख रहा है, किसी के से भी दूर नहीं है वो। पहले तो हमें यहाँ हीरा मंडी में बाजार में आते हुए वो पहले होता था, कोई डाका पड़ता था ना शहर में, शाम को डाकू यहाँ पकड़ा जाता था, शाम को हीरा मंडी में वो उधर ही पकड़ा जाता, तो पैसे लगाने कहीं थे। अब तो जगह जगह चकले खुल गए हैं। मैंने कहा है कि डिफेंस में देख लें, गुलबर्ग में देख लें, मॉडल टाउन में शायद इतना नहीं है, लेकिन गार्डन टाउन में, और ये आपका जो क्या है ये गार्डन फैसल टाउन, मुस्लिम टाउन, जौहर टाउन, नहीं जौहर टाउन के अलावा ये जो नहर इकबाल टाउन बहुत अच्छा। इनमें से फिर ऐसे भी था कि बहुत जो सारी जो लड़कियां थी जो जिनका बहुत अच्छा काम जिनका चलता था, वो फिर रहती नहीं थी, वो उनके घर जो थे वो बाहरी थे और वो आती थी यहाँ शाम को और वो कहती थी हम ऑफिस जा रहे हैं। उनके लिए ये ऑफिस था। वो 2-3 घंटे की उस वक्त इजाज़त हुई थी इनको भी, 11 से 1 बजे तक, 1 बजे फिर बंद हो जाता था। आई थिंक दैट वाज राइट। सारी रात खुला रहना भी कोई अच्छी को बात नहीं थी, तो वो ठीक तरीका था। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक साहब आ गए तो उन्होंने कहा जी पर्दे डाल दो, तो पर्दे डाल दिए उन्होंने, ठीक है। वो एक और ही एक चीज़ शुरू होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको इतना तंग किया गया कि फिर वो सारी भाग भोगी गई हैं, खत्म हो गया। अच्छा मेरे साहब आखिरी बिल्कुल बात, अब ये बात बड़ी अहम, उन्हें ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਇਹ ਬਸੰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਸੰਤ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਸੰਤ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ 2 ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨਾਂ ਤੇ ਡੋਰਾਂ ਫਿਰ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। जो बाकिरदार कौमें होती हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। आप जैसे मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, जापान चले जाएं, आप किसी को कोशिश करें कि टैक्सी वाले को टिप देना या किसी वेटर को टिप देना, वो अपनी इंसल्ट महसूस करते हैं, ठीक है। अगर आप एक समझदार बाकिर, क्योंकि हमारे जो भी हुक्मरान आए उन्होंने कभी अपनी अवाम की तरफ उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी, ना अपनी नौजवान नस्ल का तो कसूर ही कोई नहीं, उनका तो हाथ पकड़ने वाला ही कोई नहीं था। उनको कौन सिखाता, ना उनमें अदब है, ना अदाब है उनके अंदर कोई, ना वो पढ़ते हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि जी शादी कब होगी, जॉब कैसी मिलेगी, बस वो आप कोटे लगा लगा के तो एक जनरेशन आपने तैयार कर दी, ठीक। अच्छा वो अब उसका तो ये किधर हम जाएंगे अगर हमारे ये तो तरीका तो ये होता है। आप देखें बाहर की कौमों को जाके देखिए, वहाँ को एक चीज़ जो पब्लिक चीज़ इंटरेस्ट के खिलाफ होती है, लोग खुद ही नहीं करते। ये चीज़ हम अपने अंदर डेवलप नहीं कर सके। मेरे ख्याल बाकी कौमें जो हैं, अगर आप देख लें, मे बी आप बांग्लादेश चले जाएं, वो भी इस लिहाज से हमसे बेहतर है, हिंदुस्तान भी हमसे बहुत बेहतर है। हमारे बच्चे किताबें पढ़ते ही नहीं हैं। अब यहाँ किताबों की दुकानें धड़ाधड़ बंद हो गई। फिरोज हंस को देखे क्या हाल हुआ, वहाँ जो जूतों की दुकान, वहाँ भी जूतों की दुकान। तो मैं हिंदुस्तान तो बसंत कैसे अब हम मनाएंगे, क्या करेंगे हम? ये कौन, मुझे लगता है मियां नवाज शरीफ साहब का आइडिया है कि वो चाहते हैं कि बसंत मनाई जाए। कहा यही जा रहा है क्योंकि उनके जो PSO हैं वकार अहमद साहब, वही इसको इनिशिएट कर रहे थे, इसको उन्होंने बातचीत शुरू की थी। तो क्या नज़र आ रहा है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, अभी गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है। बाकी तो मैंने इमरान को भी कहा था कि बसंत करो, तो उसने कहा था कि उसने कहा अच्छा चलो फिर ऐसे करते हैं कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। अगर कोई हादसा हुआ, मैंने कहा यार मैं किस तरह ले सकता हूँ। सो कोई भी इस चीज़ की आई सपोज जुर्रत नहीं कर सकता, क्योंकि इतना इसके ख़िलाफ़ पहले तो जो उलमा हज़रात हैं उन्होंने कहा जी ये हिंदुओं का है, फलाना है, ढमकाना है।
बहरहाल वो तो हिंदुस्तान में जाके देखें तो हर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके जो मज़ार हैं उन पर बसंत की सेरेमनी होती, निज़ामुद्दीन औलिया की होती, मुख्तियार काकी के मज़ार पे होती है, और बाकी जो दिल्ली के, क्योंकि हमें तो मुसलमान तो उसकी वजह से पसंद करते थे ना, वो निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया था कि अच्छी चीज़ें करनी है, इंजॉय। क्योंकि जो औलियाए दीन थे जिन्होंने यहाँ इस्लाम लेके आई, कोई मौलवी हो, बादशाह, कोई मोहम्मद बिन कासम या शहाबुद्दीन गौरी या क्या नाम था इसका, ये कुतुबुद्दीन ऐबक तो खैर बाद में आया, महमूद गजनवी, ये नहीं इस्लाम लेके आए, ये आए बादशाह थे बस, ठीक है अपनी हुकूमत शुमत कर जाए, यहाँ सिर्फ सूफिया इस्लाम लेके आए। और सूफ़ी बड़े जीनियस थे, वो इस्लाम जो था वो देखते थे कि कोई चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ हो और रिजेक्ट कर देते थे, लेकिन जो चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं होती थी उसको हमेशा एक्सेप्ट करते थे। आप अपनी शादियाँ देख लो, आपकी शादियों में बारात, मेहंदी, ये क्या तुम्हारा ख्याल है, ये हम सऊदी अरब से आया है ये सारा कुछ? नहीं, ये हमारी लोकल कल्चर है यहाँ का। तो उस चीज़ के वो कभी खिलाफ, अब मुझे बताओ कि मेहंदी या बारात या कोई और जो कुछ चीज़ इस सब की रस्में हैं, ये कोई इस्लाम के खिलाफ है? सो लोकल जो कल्चर, जहाँ इस्लाम भी गया, जहाँ भी सूफिया इस्लाम लेके गया, उन्होंने लोकल कल्चर को एक्सेप्ट किया। हम कल्चर और मजहब में आप तुर्की में जाके देख लें, आप बांग्लादेश में जाके, बांग्लादेश में क्या कहते हैं, वहाँ अभी तक अब जो अच्छे घर की लड़कियाँ उनको म्यूज़िक और डांस की ट्रेनिंग दी जाती है। बल्कि एक वक्त था कि अगर आप लड़की को, उसकी शादी नहीं थी हो सकती अगर उसको गाना और उसको क्या कहते हैं डांस करना ना आता हो। ये तो मुसलमान थे सारे बात। तो ये चीज़ें जो है ये बड़ी एक सोच विचार के साथ हमें ये देखना चाहिए कि हम हर चीज़ को कह देते हैं कि जी ये गैर इस्लामी है, ये भी गैर इस्लामी, हालांकि कोई ताल्लुक नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये सारा ये होता रहा। फिर अब उसमें काफ़ी हिम्मत के साथ कोशिश करके मैंने बहुत सारे उलमा को भी इस पर कन्विंस किया कि नहीं आप इसको देखें, नहीं इट्स मेरा मतलब है कि अब इसकी अच्छी चीज़ें भी हैं। अब हम गलियों मोहल्लों में, यहाँ हमारे बच्चे जो हैं, यहाँ ड्रग्स बिक रही होती हैं, वो माँ खुश रहती, छत पे सारा दिन चढ़े बच्चे गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं था उनका, बाहर ना जाते हैं ना इस चीज़ को फेस करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इट्स एक ये भी है कि ये एक ऐसा एक चीज़ है कि जो लोग अपने घरों में मनाते हैं और घर के अंदर ही क्या हम करते हैं, कोई खाने बनाते हैं, खुश होते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। वही तो बात वो उलमा हमारे वैसे एग्री कर गए थे, बिल्कुल सारे कर गए थे। मैं कहता बात वहीं पे आ जाएगी जो इमरान खान साहब ने कही थी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई नहीं, बात मेरा मतलब है उसमें कोई पॉसिबल तो नहीं था ना कि मैं कहूँ अच्छा भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। तो बात यह है कि इसको मैंने हमेशा ये कहा था कि अगर आपने बसंत करनी है तो मोटरसाइकिल पे लगा दें बैन। 2 दिन की बसंत पे तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। 2 दिन की बसंत नहीं होनी चाहिए। अगर हुए बसंत तो 1 दिन की बसंत हो, सैटरडे की रात को हो, शाम तक चले, ठीक है। बल्कि कोशिश करें कि रात की बसंत को ख़त्म करें, क्योंकि बसंत का फेस्टिवल है ही दिन का, ये हमेशा दिन का फेस्टिवल होता था। रात को तो कुछ भी नहीं होता था। रात को ये होता था कि आप उड़ाते थे, कंदीलें उड़ाते थे रंग बिरंगी, और वो बस इसके पता होता था कि अभी कल, ये मैसेज होता था सारे शहर को कि कल सुबह बसंत। तो ये यही तरीका हो सकता है। इनिशियली आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप फिर बिल्कुल बसंत मनाने की या काइट फ्लाइंग की इजाज़त देने की कोशिश ना करें, क्योंकि नुकसान तो फिर होगा। अब नहीं चाहते अब आपके बसंत हो, अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि बसंत हो, लेकिन मैं ही नहीं चाहता कि लोगों की अमवात हो। तो फिर इस रास्ता क्या निकलेगा? बस मैं तो कह रहा हूँ आपके बाइक को बैन करें सारे शहर के अंदर, 1 दिन के लिए, 1 दिन के लिए बैन कर दें बिल्कुल टोटल। अभी तो बसंत है ही नहीं, गुड्डी उड़ाने पे पाबंदी है, फिर गर्दनें कट रही हैं। तो और आपको लगता है कि जो लोग सामान खरीदेंगे, गुड्डियाँ खरीदेंगे, वो 1 दिन मना के रुक जाएंगे? देखें ना, जो यहाँ अब जब काइट फ्लाइंग पे बैन है तो उस पर तो इन्फोर्स करना चाहिए, ठीक है, कि वो बिल्कुल कहीं भी काइट फ्लाइंग ना हो। जब इजाज़त हो तो उस दिन आप मोटरसाइकिल को बैन कर दें। अभी भी मोटरसाइकिल पे ही हुई ना 99% हम बात, मैं तो पिछले हर कमेटी में हम जो पुलिस से ये रिकॉर्ड लेते थे सारी। देखें, बात यह है कि एक बंदा जो है छत से गिरता है, उसकी अपनी गलती है, इसमें किसी की गलती नहीं है। कोई बच्चा गाड़ी या कोई बंदा गाड़ी के आगे आके तो इंजर हो जाता है, वो उसकी गलती है। लेकिन एक शरीफ आदमी अपने बच्चे के साथ जा रहा है मोटरसाइकिल पे और उसकी गर्दन कट, उसका ना कोई ताल्लुक है बसंत के साथ, ना वो लूट रहा है, ना वो गुड़ियाँ उड़ा रहा है, तो ये तो ज्यादती है ना, ये तो ये नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल, ये इस चीज़ की सख्त हर इंसान को ही होना चाहिए। ये भी एक भी जान नहीं। आखिरी सवाल,
जब आप बसंत मनाते थे या आपके यहाँ पे बसंत मनाई जाती थी तब भी गर्दनें कटती थी? नहीं, बहुत शिद्दत से बसंत उंगलियां कटती थी, कभी गर्दन नहीं कटी, क्योंकि वो डोरें होती थी कॉटन की डोरें होती थी, वो टूट जाती थी जल्दी। ठीक है, ये तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये भी पैसा है ना हराम का बहुत सारा। ठीक है, तो ये जो 9 दौलती हैं जिनके पास एकदम पैसा है, जो ये हर चीज़ को, जो हर वक्त जहाँ जाते हैं 6 बंदे डाले वाले, 7 आगे 2 पीछे, इनके बच्चे भी 15-15 साल के बच्चे नहीं हैं, उनको 6-6 करोड़ की गाड़ियाँ हैं उनके पास। वो फिर उनकी थिंकिंग है कि हमारी जो है ना गुड्डी कभी ना कटे, तो वो फिर वो धागा इस्तेमाल करते हैं कि जो आपकी बुलेट प्रूफ वेस्ट में इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर आप लोहे के परोथे के साथ और केमिकल आप उसके ऊपर लगाते हैं, तो वो तो तलवार की तरह है। तो ये एक जो ट्रेंड है, इसने सारी बसंत में खराबी पैदा की। वरना अगर ये चीज़ ना आती और लोग इसी चीज़ पे लगे रहते, तो आप देखते कि आज ये एक चंद बिलियन डॉलर की पाकिस्तान के लिए इनकम थी। इमरान खान की सियासत को कैसा देखते हैं? वो भी इमरान तो खान की सियासत है, करने वाले ही उसको लेके आए थे, वो तो करने वालों के खिलाफ था। करने वालों के खिलाफ तो सारे ही थे। अब देखें ना, अब आप सोशल मीडिया उठा के देखें, सबकी तकरीरें निकल आती हैं कि उन्होंने करने वालों के खिलाफ, किसी ने ये कहा, किसी ने ये, सब जितने भी हैं सबके साथ, तो उसकी भी निकाल के ले आते हैं कि ये कहा या किया। तो मेरा ख्याल है कि अब ये देखना पड़ेगा कि आइंदा आगे जो इस मुल्क के साथ इतने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, ये अब मजीद एक्सपेरिमेंट का हामिल नहीं है ये। आपका तो बड़े जिगरी दोस्त है, क्या वो वाकई एक पॉलिटिशियन है? इमरान खान साहब एक पॉलिटिशियन? आपको पता है कि जब इमरान ने शुरू किया था तो मैंने इसको, आई वॉज दी ओनली वन हू सेड कि यार तुम ना जाओ सियासत में। मैंने उससे कहा था कि तुम ना जाओ सियासत में, इट्स नॉट, ये फील्ड जो है ये बहुत ही, लेकिन खैर बहरहाल उसकी अपनी मर्जी थी एंड ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, ही मेड अ सक्सेस ऑफ इट आल्सो विद द हेल्प ऑफ करने वाले। मेरा ख्याल है कि करने वाले जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने उसकी हेल्प, उसके बगैर तो कोई भी नहीं। आई थिंक भुट्टो साहब भी जब आए थे तो वो भी उस वक्त वो भी, लेकिन पब्लिक सपोर्ट जो है वो एक और चीज़ होती है। कि मियां साहब इसका मतलब इलेक्शन तो कुछ नहीं होते ना, अगर करने वालों की वजह से ही हमने बनना। अब तो अमेरिका में भी कुछ नहीं होता, इंडिया में देख लें क्या हो रहा है। इंडिया में भी अब वही रोना पीटना चल रहा है कि जी वहाँ भी सारी सख्त रिगिंग हुई है और वो मिल मिला के सब ने वहाँ इलेक्शन करा दी। तो ये अब डेमोक्रेसी भी एक फार्स हो गई है ना। अब देखें, इकबाल को बड़े लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि अलामा का वो शेर है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को घिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो बात यह है कि इस्लाम जो है, हम एक वी बिलीव इन अ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। बाकिरदार लोग होने चाहिए, बाकिरदार लोग ऊपर आएंगे तो फिर ही सारी कौम बाकिरदार होगी। और अगर आप इस तरह की शैम डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं वो आप बेशक बना लें, उससे कोई, मैं नहीं समझता कि उससे कोई, और ख़ास तौर पे ऐसे ममालिक में कि जहाँ इतनी जहालत हो, जहाँ जाहिल से जाहिल हमारा, अब क्या हमारा हाल है। उस दिन मैं वो शाहजेब खानजादे का सुन रहा था ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान, तो बड़ा डिप्रेसिंग मुझे लगा कि कितने, कम से कम कितने को 2.25 करोड़ नौजवान हैं जो हूज़ जॉबलेस इन पाकिस्तान। जापान देखें, स्वीडन देखें, बाकी जो ममालिक हैं यूरोप के, जहाँ बिल्कुल मतलब कि जो चीज़ें हम में होनी चाहिए थी, ठीक है, जो वो उनमें है। इसीलिए वो कई लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में मुसलमान है, इस्लाम कोई नहीं। ठीक है, उन ममालिक में मुसलमान नहीं है लेकिन इस्लाम है। तो एक अब आप ये कहें कि ठीक है जी ये बातें पुरानी लगती हैं, लेकिन आप आजकल आप सोशल मीडिया देखें और इतना कलाम इकबाल सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है, और ख़ास तौर पे वो जो तमाम कलाम इकबाल का ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने जो किया है, ख़ुद हमारा अपना इदारा है, क्या कहते हैं, दबिस्तान इकबाल। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो रियल इकबाल का जो विजन था, जो इकबाल का जो थिंकिंग थी, अब आप अगर अपने फाउंडिंग फादर्स को ही भूल जाएं और कहें कि जी वो तो उनकी तो सोच ही बड़ी पुरानी थी, सोच उनकी पुरानी नहीं थी, ये हमारे दिमागों में डाला गया है कि सोच पुरानी थी। उनकी सोच सही थी, और आज भी आप देख लें कि जो इकबाल ने जो आज से 70, 80, 100 साल पहले कहा है, वो आज प्रूव हो रहा है आपके सामने, आप देख रहे हैं कि वो हो रहा है।
तो बात यह है कि आप उससे हम दूर हो रहे हैं, कम से कम हमारी सियासत में वो बात नहीं है, हमारे सियासत में वो बात नहीं है। सियासत एस्टेब्लिशमेंट का रोल आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है? उन्हीं का रोल है शुरू दिन से, आज भी उन्हीं का ही रोल है। और हमारी ही इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे ही भाई हैं बहन हैं, कोई ये तो नहीं कोई बाहर से आए हैं। लेकिन अब आई थिंक दे शुड आल्सो रियलाइज कि उनके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कामयाब नहीं हुए, और ना ही वो लगता है कि कामयाब होंगे। और जब तक कि अब 100% जो अवाम है वो साथ नहीं खड़ी होगी। और इस वक्त तो हमारा मसला भी यही है कि एक इतना बड़ा एक स्प्लिट जो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, ख़ास तौर पे जो फ़ौज है, हम उसके बगैर हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जिसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। रोल के ऊपर हमें वो है कि उनको खुद ही अपना ये डिसाइड करना चाहिए कि अपना रोल उन्होंने कहाँ तक रखना है और कहाँ तक नहीं रखना। तो वो एक शेर था ना, नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, जाने किस जुर्म तमन्ना की सज़ा देते हो। तो ये बनाते भी खुद ही हैं, मिटा भी खुद ही देते हैं। इमरान खान साहब का जो अभी एक उनकी जो सिचुएशन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको लगता था कि ऐसा होगा जो अभी हो रहा है? हाँ, मुझे बिल्कुल लगता था ऐसा होगा जो हो रहा है। और आई थिंक कभी ना कभी तो ये जो है, ये चीज़ जो है, इट विल हैव टू कम टू सम कंक्लूजन। देखिए, बात ये है कि ये जो भी एक इतनी ज़्यादा एक हमारे इदारों के ख़िलाफ़, हर किस्म के इदारे के, चाहे वो सब जितने भी सरकारी इदारे हैं, जो एक रिजेंटमेंट है, अगर ये ख़त्म ना हुई तो ये एक ख़तरनाक तरफ भी जा सकती है। और ये नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए, खुदा ना खास्ता अगर ये हो गया तो ये पाकिस्तान के लिए पता नहीं फिर क्या हमारा। खान साहब की जो जारहाना सियासत थी, जो उन्होंने सियासी मुखालफिन की तरफ करने की बजाय उसका रुख कहीं और की मोड़ दिया, वो आपको लगता था कि सही था उनका कदम? मसलन क्या आप कहना चाह रहे हैं कि जिस कंधों पे सवार होके आए थे, उन्हीं कंधों के ऊपर उन्होंने। नहीं, आप देखें, ये नहीं आप कह सकते कि टोटली उनके कंधों पे सवार होके आया था। ये बात ठीक है कि उनकी अप्रूवल जो है वो हर जो मुल्क का वज़ीर आज़म बनता है, तमाम चीज़ें मिलना, जहांगीर तरीन साहब का लोगों को लेके आना, शामिल करना, वो तमाम इलेक्टेबल्स के वो फिलॉसफी करना, ये सारी चीज़ों ने हुकूमत बनाने में मदद तो की थी। बिल्कुल मदद की थी। आई एग्री विद यू, टोटली मदद की थी। और उसके बाद फिर जो हुआ वो भी सबके सामने है। अब ये इसमें बड़ा गलत भी हुआ, सही भी हुआ, मैं तो नहीं समझूँ कि मैं तो, आपको पता है कि मैंने जब से सियासत छोड़ी 25 साल हुए, मैंने कभी भी कोई सियासत में कभी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया। इमरान के दौर में भी मेरी उसके साथ बिल्कुल भाई बंदी दोस्ती आज भी है। ही वॉज आई थिंक बहुत सारी जो लोग उसके साथ थे, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थे। आई नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई ऑलवेज, मैंने दबे कभी शायद मैंने कुछ जिक्र एक आध दफ़ा किया हो, लेकिन मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता था क्योंकि मेरा काम नहीं है। वो सुनता था, क्यों नहीं सुनता था? फिर सुनता होगा ज़रूर, क्यों नहीं? मैं तो कह देता था, वो सुने ना करे, अमल करे, उसकी भी आई सपोज मजबूरियाँ होंगी या नहीं होंगी। लेकिन बात यह है कि वो कोई मतलब कि कोई महसूस जो है, मुझे नहीं लगता था कि भी ये जो इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उसको सही गाइड कर रहे हैं, या कोई खुद वो कोई बड़े बाकिरदार लोग हैं, वो नहीं थे ऐसे। तो बहुत उन्होंने वो किया, लेकिन खुद जो उसके बारे, अपने बारे में, आई डोंट हैव द सेम व्यू। क्या इमरान खान साहब मर्दम शनास हैं? बंदा पहचान लेते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा उसको ही इज टू, वो हर एक को जो है वो उसको ट्रस्ट उसको कर लेता है। इसका मतलब मैं इन अदर वर्ड्स कहूँ, वो कानों के कच्चे ना, मुझे कहता था कि तुम नाइव हो, तो मैं उससे कहता था, नहीं मैं नहीं, तुम नाइव हो। आई एम नॉट नाइव, मासूम, यानी कि बिल्कुल भोला बादशाह। लेकिन ये अच्छा ट्रेट तो नहीं है किसी लीडर के लिए, भोला बादशाह होना। हाँ, मेरा मतलब है कि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये क्योंकि एक तो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, ठीक है, और मे बी कि अब अगर फिर उसको मौका मिले तो दैट विल बी द टाइम, लेट्स सी कि उसमें कोई चेंज आता है या कोई रियलाइज करता है कि उसने जो पास मिस्टेक्स हैं वो दोबारा नहीं होंगी। लेकिन इस वक्त तो बात ही है ना कि इस वक्त तो मजलूम है, ठीक है। सो वो उसमें मेरा मतलब है कि अब मैं उस दिन सुन रहा था
प्रोफेसर अहमद जवेद साहब का इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी इमरान को वोट नहीं दिया और ना ही मैं दूंगा, लेकिन इस वक्त वो मजलूम है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो ये इस तरह की लोगों की एक जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर इस तरह ये काम चलता रहा तो ये इस आवाम में और इस्टेब्लिशमेंट में दूरियां ही दूरियां होती जाएंगी। ये काम जो है ये अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। हमारी जो फ़ौज है वो हमें वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर आर्मी, और आर्मी जो है उसकी हमें उसके बगैर हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब हिंदुस्तान जैसे अफगानिस्तान भी उनके साथ मिल गया जैसे दुश्मन आपके गिर्द हो, हाँ जो हुआ सारा ये नहीं हो सकता। इसलिए दे हैव टू कम टू सम कंक्लूजन, कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकालना पड़ेगा और निकालना चाहिए। अच्छा, ये बताएं, इमरान खान साहब की जो फैमिली लाइफ है उसने उनकी पॉलिटिकल लाइफ को भी डिस्टर्ब किया, ऐसे कहा जाता है। नहीं, मैं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, उसकी फैमिली लाइफ ने किया नहीं किया, ये चीज़ें जो हैं ये तो हर वक्त चलती रहती हैं। क्या ख़वातीन के मामले में ऐसे थे? क्योंकि अब ये सवाल ये है कि एक खातून थी, उनके साथ उन्होंने शादी की, उनकी घर की तलाक करवा के वो सारा कुछ किया, क्या ये सही था आपकी नज़र में? आप इसको बेहतर समझते हैं? क्योंकि आपने मुझे शुरू में ये बात की थी कि एक शादीशुदा औरतें होती हैं, उन्होंने बाहर भी कुछ अपने दोस्त रखे होते हैं और इस तरह घर टूट जाता है, तो ये सारा कुछ नहीं, ये नहीं कहा कि घर टूट जाता है, मैंने ये कहा कि टूट गया होता है। नहीं, वो शादीशुदा भी रहते हैं और अपना बाकी और उमूमन वो तभी होता है। ये जब फैसला लिया था उन्होंने ये वाला, आपका क्या रिएक्शन था? मुझे नहीं पता था फ्रैंकली, क्योंकि मुझे तो बाद में पता चला कि ये फैसला हुआ। ठीक है, मेरा तो आपका रिएक्शन क्या दोस्त है, भाई है, अभी अगर उसने कुछ चीज़ कर ली है तो ये उसकी पर्सनल एक मेरा मतलब है उसकी एक था, और किसी को शादी करना किसी के साथ या ना करना, ये इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, ये इंसान की पर्सनल लाइफ होती है। चलिए इमरान खान साहब वाला चैप्टर यहाँ क्लोज करते हैं। आखिरी सवाल के ऊपर, क्या इमरान खान साहब एक बेहतरीन वज़ीर आज़म हैं और क्या आप आने वक्तों में बन सकते हैं? अभी तो इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं है। नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ कि जो भी इस मुल्क का वज़ीर आज़म आए उसको बेहतरीन ही होना चाहिए, मेरी तो दुआ है। ये हैं, ये इमरान खान साहब हैं। अभी तो है ही नहीं ना वज़ीर आज़म। अगर थे जो उनसे थे वो बेहतरीन थे। बहुत सी बातें उनकी अच्छी थी और बहुत सी बातें उनकी अच्छी नहीं। ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा बुरी थी? नहीं, ये मैं इसका मुआवजा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी तो दसना नहीं चाहते हो, है ना? जाहिर बात है, कोई भी मैं किसी के बारे में ये बात, लेकिन आप हल्का सा मुझे आप किसी लीडर के बारे में पूछ लें, ठीक है, माँ सवाए को ऐसा लीडर जो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के खिलाफ हो, मैं उसके बारे में इस तरह की बात पॉजिटिव करेंगे आप? पॉजिटिव ही करूँगा। बिल्कुल ठीक है रमीज़ साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें वक्त यहाँ पर बिठाया और ये मेज़बानी की हमारी इस खूबसूरत जगह पे, उसका बहुत शुक्रिया। नहीं, यू आर वेलकम। और मैं जाते जाते आपसे आखिरी मैसेज देना चाहूँगा, क्या आप अपने देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? किसी शेर में दे देना अच्छे से तो बड़ा मज़ा आ जाए। वो कहते हैं ना, अनायत करें। शेर में दे दूँ, क्या दूँ? कोई ऐसा शेर जो मेन यूसुफ तो ये समझ नहीं आती कि हमारे नौजवान शायद उर्दू भी समझते कि नहीं। नहीं, कहते हैं वो शेर जो आपकी मैं ज़िंदगी की तर्जुमानी करता हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ सबसे कि ये अपने मुल्क के इत्मीनान रखें। जिन लोगों ने ये मुल्क बनाया था वो बड़ी बाकिरदार और बड़ी सच्ची नीयत के लोग थे, और अपने मुल्क से वाबस्ता रहें, अपने मुल्क से उम्मीद रखें। उम्मीद जो है वो बिल्कुल हमारे हालात किसी न किसी वक्त ज़रूर बदलेंगे और हम बेहतर हमारे हालात होंगे। तो उलामा साहब का एक शेर है कि मिल्लत से अपनी रिश्ता तो इस्तवारक, वाबस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर। बहुत शुक्रिया आपका मियां साहब। मुझे उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें और अच्छे कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।